So what is the definition for circle? So it will be like fixed distance from a fixed point. Fixed distance from a fixed point is a circle. Fixed distance from a fixed point is a circle. So the fixed distance is the radius and the fixed point is called the center. So I hope this is clear. Fixed distance from a fixed point that makes a circle. So radius, then comes if this radius, if I join any 2 points, if I join any 2 points of the circle, I will get a chord. Diameter is the longest chord. Diameter is longest chord, and it will be, diameter will be twice of r. So this is the basic definition for circle. ठीक है. Now let's understand what is a chord, what is a secant, and what is a tangent. Joining any 2 points on a circle, I will get a chord. Diameter is the longest chord that passes through center. If a chords divides the circle in two parts, माइनर सेगमेंट जो छोटा वाला रहेगा सेंटर के ऊपर, और एक रहेगा मेजर सेगमेंट जिसमें आपका सर्कल इंक्लूड है. सो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. Then comes the secant and a tangent. Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. So this is the tangent, chord and secant. I hope ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर है. So after that, if I take this part, अगर मैं पिज्जा को जैसे देखता हूँ, so this is called sector. This is a sector of a circle. Area of a sector is theta by 360 into pi r square, where theta is the central angle. And if I consider this, if I assume this, so let's say this is a arc. This is an arc, and uh, length of arc is theta by 360 into 2 pi r. 2 pi r is circumference, and uh, pi r square is the area. So these are the some basic terminologies that is we are going to use in the upcoming session. So क्या क्या सीखा है? Chord, उसके बाद में tangent, sector, sector के बाद में arc. So these are the 4 points. Any confusion in these 4 points? 1, 2, 3, 4. कोई कंफ्यूजन इसमें? Chord क्या होता है, tangent क्या है, sector क्या है, arc क्या है? कोई कंफ्यूजन? Reply with yes or no. All clear? ठीक है. Okay, so let's begin with the session then. There are some very important properties of chords. Congruent chords equal subtends equal angles at the center. Let's say कि एक AB chord है और एक PQ chord है. अगर AB और PQ congruent है, यानी उनका लेंथ सेम है, तो उनका सेंटर पे जो एंगल पड़ेगा वो इक्वल रहेगा. दैट इज क्या आना चाहिए? बताओ. सेंट्रल का एंगल, अगर एबी और पीक्यू कॉन्ग्रुएंट है तो सेंट्रल का एंगल इक्वल. विच व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सेंट्रल एंगल सर इक्वल, कौन से एंगल एंगल इक्वल होंगे? एंगल एओबी और फिर पीओक्यू इक्वल होगा. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. एओबी एंड पीओक्यू इक्वल रहेंगे. गुड. कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या हुआ कि उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. which means that OD is equal to OR. This is your second property. Then comes chord equidistance from the center are congruent. उसी का inverse. अगर equidistance है तो भाई equal ही होंगे. Fourth property, which is the most important one, perpendicular from the center to the chord
bisect the chord perpendicular from the center. Center से डाला हुआ perpendicular will bisect the chord. ठीक है, मारीगोल्ड का बिस्कुट सभी ने खाया है. अगर आपने मारीगोल्ड का बिस्कुट खाया है और मैं आपसे कहूँ कि इसको ऐसा तोड़ दो, तो अगर मैं इसको आधा तोड़ता हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, which means that this angle is a 90 degree. So perpendicular from the center to the chord bisects the chord. So एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ. अगर मैं कहूँ कि PQ 20 है and OR is perpendicular to PQ, find PR. PR कितना होगा? Quickly. Should be 10. Perpendicular from the center to the chord bisects the chord. Good. So ये हो गए हमारे कुछ प्रॉपर्टीज. और दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ? उसी का इनवर्स, कि अगर मैं कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को जोड़ दूं, कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को जोड़ दूं तो वो परपेंडिकुलर होगा. दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी. So any confusion? If you want to take the screenshot, जल्दी से ये screenshot ले लो ये properties का. You have to add this into your formula book. So I hope you are done. Let's solve some question based on this. What is the maximum distance between two parallel chord of length 6 cm and 8 cm in a circle of diameter 10 cm? सर्कल का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर. दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस आप कितना बना सकते हो? So got answer from Animesh, Ketki, Kaustubh. Nick. Four answers. I got reply from Ashwini as well. Good. ठीक है. So पहले तो पैरेलल कॉर्ड्स बना लेते हैं. क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है तो दोनों को सेंटर के अपोजिट में रखेंगे. एक को रखेंगे इधर और एक को रखेंगे इसके अपोजिट में. ओके. वानी, अनम्यूट कर सकते हो, बताओगे आगे क्या स्टेप करेंगे? नो सर, मुझे नहीं समझ आई है. अच्छा, ये डायग्राम तो समझा? यस सर. ठीक है. जब भी कॉर्ड का कोई क्वेश्चन आ गया तो कॉर्ड के क्वेश्चन में आप सीधा ये देख लो कि कहीं से अपन परपेंडिकुलर डाल सकते हैं क्या. ओके. और परपेंडिकुलर डालना है तो सेंटर से डालना चाहिए. यस सर. ठीक है, तो हमने यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डाली, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड है. तो ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 हो गया. यस सर. 3 एंड 5 ये क्या आना 4. चाहिए? बढ़िया. और सिमिलरली मैं दूसरे वाले पर भी डालता हूँ परपेंडिकुलर. यस सर. अब पूरा 8 था तो ये कितना होना चाहिए? 4. अब 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया है, तो ये कितना होगा? 3, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था. सो दिस हैज टू बी 3 + 4 व्हिच इज 7. यस सर. सो आंसर इज 7. क्लियर? यस सर. व्हाट अबाउट अदर्स? इज दिस क्लियर? रुचि क्लियर है? Okay. Yes, sir. Now, next question.
व्हाट कैन बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कॉर्ड्स? मिनिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम तो हो गया 7, मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होगा तब जब दोनों ही सेंटर के एक ही साइड में होंगे। So what if I shift this 8 centimeter वाला chord इधर? So it will look like this. So 8 वाले में डायग्राम कैसे होंगी? रेडियस इज 5. Sorry, this is 4, this is 3. So this distance is 3, लेकिन 6 वाले chord का distance 4 था. So this distance has to be 1 centimeter. So the minimum distance possible is 1 centimeter. Please reply. Is this second question clear or not? देवशीष, ठीक है? ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. PQ is a chord of circle with center O. AB is tangent to the circle and intersect circle at point C. AB is parallel to PQ and OC intersect PQ at point R such that OR equal to RC equal to 7 centimeter. Find PQ. सो डायग्राम आपको बनाकर दी है, ऐसी डायग्राम है, इसका डेटा भी दिया है. यू नीड टू फाइंड PQ कितना होगा. गुड. तीन लोगों का आंसर आया है अब तक. अगर मुझे कॉर्ड का लेंथ पूछा है, PQ इज अ कॉर्ड, तो कोई कॉर्ड की ही प्रॉपर्टी लगनी चाहिए. और कॉर्ड निकालना है तो फिर वही परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो मैं ये देख रहा था कि ये परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल ORQ, एंगल ORQ भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी. तो हमारा एंगल ORQ भी 90 हो गया. नाउ जल्दी से बताओ OQ कितना होगा. फाइंड OQ. जिनका OQ आ गया उनसे आंसर निकल जाएगा. धनवंतरी, आपका OQ का आंसर करेक्ट है, उसका रीजन दे सकते हो? सर रेडियस सेम होती है ना, सो बिल्कुल सेम है, OC सो 7 ये भी + 7 14 है, 14. so this is also 14. फिर इस Now yes. let's look into the triangle ORQ. ORQ कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है. मेरे पास OR भी है, मेरे पास OQ भी है.
तो क्या मैं आर क्यू निकाल सकता हूँ धनवंतरी? यस और नो? यस सर। और यस। कैसे? 30 60 90 सर। 30 60 90 जरूरी है? 30 60 90 लगेगा यहाँ? वैसे पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से, यस। 30 60 90 भी लगेगा, लेकिन हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है यस। तो क्या होगा? ओ क्यू स्क्वायर इज ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। सो वैल्यूज है, पुट कर दो। यस। और व्हाट इज द अदर वे? यू कैन अप्लाई 30 60 90 एज वेल। अगर ये 7 है, ये 14 है, तो ये डबल है। अगर ये एक पार्ट है तो ये डबल है, तो बचा √3। सो हमारा जो आर क्यू रहेगा वो होना चाहिए 7√3। ये 7√3 आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट हुए, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है। ये 7√3 है तो ये भी 7√3 हुआ, और दोनों का जो एडिशन हुआ वो हुआ 14√3। सो यस, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर और रिपीट। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? महक? नो सर। ओके, परफेक्ट, ठीक है। Let's move to the next question then. In a circle, two parallel chords on the same side of diameter have length 4 centimeter and 6 centimeter. If the distance between two this chord is 1 centimeter, then radius of circle is. लाइन ध्यान से पढ़ना, डायग्राम ध्यान से बनाना। Two parallel chords on same side of diameter, मतलब डायमीटर की सेम साइड है, हैव अ लेंथ 4 and 6 सेंटीमीटर। ठीक है। सो एक 4 सेंटीमीटर की और एक 6 सेंटीमीटर की, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि रेडियस कितना है। तो सोचो और सोच करके जवाब दो कि रेडियस क्या होनी चाहिए। In a circle, two parallel chords on the same side of diameter have length 4 centimeter and 6 centimeter respectively. अगर इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, and the radius of circle is. ओके, केत की बोल रही है सी होना चाहिए। अश्विनी बोल रही है ए होना चाहिए। वस्तु बी बोल रहा है। ठीक है। संस्कार, एनी आइडिया क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना चाहिए? यस सर। बोलो। सर अपन दोनों का मतलब पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बना तो लिया। हाँ, तो सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आर स्क्वायर से दोनों की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर क्या लगेगा आर स्क्वायर में? एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वेरी गुड, बढ़िया। और और दूसरे वाले में क्या लगेगा आर स्क्वायर इक्वल टू? 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। एब्सोल्युटली करेक्ट, बढ़िया। सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो, क्या दोनों इक्वेशन समझ में आई?
दोनों जगह रेडियस है और रेडियस को इक्वेट करना है, रेडियस को इक्वेट करना है तो पहले में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे में आएगा ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो आई कैन कैंसल दिस एक्स स्क्वायर। इस साइड में था 4 और एक 5, लेफ्ट साइड में जाएगा 9 माइनस 5 बचा 4 इक्वल टू 2x और x आया 2। अगर x 2 आया तो यहाँ पर मैं 2 रख लेता हूँ और इसमें मैं निकाल लेता हूँ कि कितना होना चाहिए अपना। सो दिस विल बी, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये क्या था, एक 3 है और एक 2 है तो 9 और 4 13, आर स्क्वायर इज 13 और आर विल बी रूट ऑफ 13, दैट इज ऑप्शन ए। सो डू रिप्लाई क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर और शुड आई रिपीट? धनवंतरी क्लियर, ठीक है। अनंता, रुचि, Yes, sir. ओके। सो कुछ इजी क्वेश्चंस कॉर्ड्स के और कुछ करते हैं। Two circles of radii 15 centimeter and 20 centimeter have their center 25 centimeter apart. What is the length of the common chord? Uh, what we can do is we can make this session a bit interesting. आपको क्या करना है, डायग्राम बनाओ और आपको लगता है कि अगर आपका डायग्राम गलत है या आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो। वर्क्स? डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, व्हाट्सएप पे फोटो देख के मतलब मेरी ही चैट देखना, नहीं तो तुम दुनिया को रिप्लाई कर दोगे और मैं डायग्राम का ही वेट कर रहा हूँ। ऐसा मत करना प्लीज। चैट देखी, दूसरा मैसेज किसी का भी रहे, नरेंद्र मोदी जी भी बोले कि वोट करने आ जाओ तो बोलना ठीक है अभी ज्योमेट्री सॉल्व कर लेते फिर आ जाएंगे। क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है, डायग्राम सही तो आंसर सही। सो मैंने व्हाट्सएप ओपन किया है। ऑब्वियसली जो रूल तुम्हारे ऊपर है वो मेरे ऊपर भी है, मैं किसी और की चैट नहीं देखूंगा, सिर्फ तुम लोगों का और डायग्राम देखूंगा। ठीक है, सो आई गॉट 2 फोटोज, ठीक है, करेक्ट है। हम्म, ठीक है कित की आपका डायग्राम तो करेक्ट लग रहा है। अक्षय आपका भी करेक्ट है, यू कैन प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। राघव आपका डायग्राम भी करेक्ट है। अनंता उसमें कुछ नंबर्स वगैरह भी डाल दो, डायग्राम करेक्ट बनाया आपने भी। एंड संस्कार, यू एज वेल। तो जितने भी लोगों ने अब तक डायग्राम भेजा है डायग्राम तो करेक्ट बना है। व्हाट अबाउट अदर्स? रुचि, देवशीष, धनवंतरी, महक? गुड महक, डायग्राम करेक्ट है, गुड। चलो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कितने लोग एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हैं और कितने लोग बस दर्शक बन के बैठे हैं कि भाई हाँ चलो ये सॉल्व तो कराएंगे ही। गुड रुचि, बढ़िया, इट्स करेक्ट।
आई गेस मोर और लेस सभी के डायग्राम तो करेक्ट आ रहे हैं, तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। कि हमने डायग्राम बना ली और डायग्राम के बाद ये भी देख लिया, क्योंकि सेंटर 25 सेंटीमीटर अपार्ट है तो डायग्राम कुछ इस हिसाब से होने वाला है। सो 15 सेंटीमीटर वाला, 20 सेंटीमीटर वाला एंड उनका कॉमन कॉर्ड। तो इनका जो कॉमन कॉर्ड है, जो छोटे सर्कल में भी कॉमन है और वो बड़े सर्कल में भी कॉमन है, क्या ये कॉमन कॉर्ड बोल सकता हूं मैं? क्या इसको मैं कॉमन कॉर्ड बोलूंगा? यस और नो? नो सर। इट्स अ बिग नो। एक सेंटर पे आ रहा है, दूसरे पर नहीं आ रहा है। सो द कॉमन कॉर्ड जो सर्कल 1 में भी हो, 2 में भी हो, सो इट शुड लुक लाइक दिस। दिस विल बी द कॉमन कॉर्ड एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड। चलो, सो सोचो और बताओ कितना आना चाहिए उसका लेंथ। कि तुम आंसर 24 बोल रही हो, उसके पीछे का कोई जस्टिफिकेशन? यस सर, जो बीसी रेडियस है सर, वो टैंजेंशियल है ए वाले सर्कल को, तो मैंने ए बी सी का एरिया निकाल लिया, 150 आ रहा है बेस इनटू हाइट करके। और ठीक है, वैसे कोई टेंजेंट का मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि वो टेंजेंट होना ही चाहिए। उसका रीजन, वो तो मेरी डायग्राम में टेंजेंट दिख रहा है। पर सर एक रेडियस तो ऐसे जाएगा ही, राइट, बीसी से, कि जो टैंजेंशियल होगा सर्कल ए से। ठीक है, ओके। तो और अगर उसको इक्वेट कर दिया ए बी 25, हाफ ऑफ ए बी इंटू दैट हाइट, हमको वो हाइट चाहिए, राइट, जो कॉर्ड ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसे। ठीक है, ओके। गुड। व्हाट इफ कि अगर हाइट से कि भाई ये यहाँ पर है, और सेंटर इधर है, तो अगर सेंटर इधर है तो मैं बोलता हूँ कि टेंजेंट इधर से जा रहा है, ठीक है, और द डायग्राम लुक लाइक दिस। ऐसा भी तो हो सकता था। फिर देखना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली आपके डायग्राम से ही मुझे वो लगा कि चलो, टैंजेंट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दिस इज 3 पार्ट्स, दिस इज 4 पार्ट्स, दिस हैज टू बी 5 पार्ट्स। तो ये 3 4 5 है, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। so C has to be a 90 डिग्री, क्योंकि रेशियो 3 4 5 है, यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले हैं। दैट्स व्हाई ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यस, हाँ, कितनी आगे? सर, और अगर फिर वापस हमको उसी ट्रायंगल का ए बी बेस लेके ढूंढना है हाइट। यस, 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 गुड। सो 150 इज हाफ ऑफ बेस। अब अपन ए बी पकड़ेंगे, विच इज 25 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो दिस इज योर हाइट और ये भी परपेंडिकुलर है। सो वी कैन फाइंड दिस। ये 1, ये 6, 6 2 जा 12। सो द हाइट कम्स आउट टू बी 12। क्योंकि ये 12 आया है, सो दिस इज ऑल्सो अ 12, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, तो दिस इज अ बाइसेक्टर। सो 12 एंड 12 इट्स अ 24। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो। क्लियर? धनवंतरी? एक्सक्यूज मी सर, वो हमने वो यस कैसे अक्षय। मान लिया,
कैसे मान लिया कि वो कॉर्ड परपेंडिकुलर ही होगा ए बी को? ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ए बी पे, सी से हमने हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इंटेंशनली, ठीक है। सो कैन आई हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ दिस विच कम्स आउट टू बी अ 12? 12 हाँ नाउ बी इज द सेंटर, यस सो इफ दिस इज अ परपेंडिकुलर दिस विल बी अ मिड पॉइंट, सो ये 12 है तो नीचे वाला भी 12 ही होना चाहिए। ओके हाँ हाँ सो 12 एंड 12 24। हमने इंटेंशनली परपेंडिकुलर डाला था, परपेंडिकुलर डाला था यानी वो मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। ओके। नहीं मतलब मेरा ठीक है क्वेश्चन था अक्षय? कि वो कॉर्ड कॉर्ड कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है ए बी को, यस, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिमेट्रिकल कॉमन फिगर है कॉर्ड तो हो। अगर, यस वो कॉमन कॉर्ड इसलिए भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि हमने खुद बोला है कि हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं यहाँ से, हाँ और जब हमने देखा तो ये तो अगर हमने खुद परपेंडिकुलर डाला है तो जैसा फिगर ऊपर से दिख रहा है वैसे ही नीचे से भी दिखना चाहिए। हाँ वो अच्छा भी इसलिए 90 है, और अगर तुम सिमेट्री देखो तो भी 90 चाहेगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, ओके अक्षय। और किसी का कोई डाउट इसमें कि ऐसा ही क्यों है, ये क्यों नहीं है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A chord of length 5 centimeters sustained an angle of 60 degree at the center of the circle. The length in centimeter of a chord that subtends an angle of 120 degree. 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 डिग्री एंगल बनाने वाले का लेंथ 5 है, 120 डिग्री बनाएगा उसका एंगल कितना? रुचि आप ए बोल रहे हो, क्या लॉजिक से बोल रहे हो बताओ प्लीज। हाँ सर, तो फिर अगर अपन ये ट्रायंगल को कंसिडर करें तो इसका रेडियस 5 आ जाएगा क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 60 है और ये दोनों इक्वल थे, तो ये एंगल्स भी इक्वल हुए क्योंकि 60 आ गया था तो रिमेनिंग 60 60 आ गया, सो इक्विलैटरल आ गया तो इसका रेडियस भी 5 आ गया। आगे? हाँ, और फिर व्हेन वी एक्सटेंड जो अपना जो कॉर्ड है उसको सी पॉइंट से एक्सटेंड कर लिया और एंगल 120 डिग्री कर दिया, ठीक है, तब भी तो आपके डायग्राम के हिसाब से ओसी और ओडी भी 5 होगा। वेरी गुड, तो 120 और 30 डिग्री ट्रायंगल वाला का रूल है, जब 5 है तो 5√3 आएगा अपोजिट साइड का। गुड, सो इट शुड बी 5√3 which is option A. गुड, बाकी लोग प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, इज द एक्सप्लेनेशन क्लियर और शुड आई रिपीट दिस? संस्कार ठीक है, दीप्तांश ठीक है, यस सर। अनिता? Yes, sir. ओके Yes. परफेक्ट। नाउ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स का प्रॉपर्टी देखते हैं। और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो कॉर्ड्स मिल रहे हैं कहीं पर भी, सो प्रॉपर्टी सेज AE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू DE, AE इंटू BE CE इंटू DE, दिस इज इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का प्रॉपर्टी। So if you want to note, you can. If you want to take the screenshot, you can.
होने के बाद एन रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चलो एक जल्दी से क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे। लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 12, इफ दिस इज 8, फाइंड डीई। Should be 50. 10 into 12 is 8 into what? Should be 15. And tangent का property, our tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Second चीज, tangent from an external point are equal. अगर P से मैं कोई tangents डालता हूँ सर्कल पे तो वो इक्वल रहेंगी। ठीक है, ओके इसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि लेट्स से कि इफ आई ड्रॉप यहाँ से एक परपेंडिकुलर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, लेट्स से दिस इज k, so if this is 14, what is this value? This is also has to be a 40. And then tangent second theorem, if we draw a tangent from point P and a second from point P as well, tangent भी डाला और second भी डाला, tangent second theorem कहता है PR square is PA into PB. PR square is PA into PB. This is tangent second theorem. Let's take an example of this. If I say your PR is 15, PR is 15 and AP is 5, find AB. लगाओ टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगाओ इसमें, PR is 15, AP is 5, AB कितना? आई गेस गलत बोल रहे हो तुम लोग, अश्विनी, संस्कार, अक्षय गलत है। Yes, anyways, yours is correct. टेंजेंट सेकंड थ्योरम कहता है PR स्क्वायर, वानी तो कुछ अलग ही जवाब दे रही है, इस PA पहली जगह टच किया मल्टीप्लाइड बाय PB, so PR square that is 225 is equal to PA, which is given as 5 into PB, so PB comes out to be a 45। पूरा PB 45 है, मैंने पूछा था AB कितना होगा, पूरा 45 है, इसमें से 5 माइनस कर लो तो बचा हुआ होना चाहिए 40, so your PB AB should be 40। Please reply, संस्कार, clear? Yes, sir. Okay, so this is a tangent second theorem. So let's solve. In the figure, O is the center of circle with radius 12 centimeter. ठीक है, so radius 12 दी है, BAC 30 डिग्री है, just to tell you कि अभी के लिए 30 है, so this has to be a 60 डिग्री। जो ये प्रॉपर्टी वो अपन आगे सीखेंगे, अभी के लिए मैं डायरेक्ट डेरिवेशन देता हूँ, एंगल BOC is 60 डिग्री। Other information is given, you need to find D कितना होगा। चलो देखते हैं कितना लोगों को क्या समझ में आया।
चलो, लेट्स चेक कि आप लोगों को डायग्राम कितनी समझ में आई है. Just hold on, or let's check if you are able to understand this. ट्रायंगल ओबीसी कैसा ट्रायंगल है? स्केलेन, आइसोस्केलस या इक्विलैटरल? जल्दी से रिप्लाई करो. ट्रायंगल ओबीसी कैसा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ओबीसी कैसा है? स्केलिन, आइसोस्केलस और इक्विलैटरल? इक्विलैटरल है. और इक्विलैटरल है तो अगर ये 12 दिया है तो हमारा बीसी भी 12 हो जाएगा. बीसी 12 है और डीसी 4 है. सो लेट्स अप्लाई टेंजेंट सेकंड थ्योरम इन विच डीई स्क्वायर इज डीसी मल्टीप्लाइड बाय डीबी. डीई स्क्वायर is equal to DC. DC is given as 4 and DB कितना होना चाहिए? 4 plus 12 which is a 16. So can I say D square is 64 or DE will be a 8. So this is the application of tangent secant theorem. इसका एक example लिया था. So yes, is this question clear or not? Please let me know. कोई confusion है तो. मयूरी. सर yes मतलब अक्षय. लास्ट डायग्राम आपने दिया था तो एक पॉइंट से थ्री लाइन ऐसे कुछ निकाले थे ना, तो इसमें हाँ. तो दो ही है, तो फिर कैसे अप्लाई किया? ठीक है. DE is a tangent, agree, हाँ, अग्रीड. and DB is a secant. हाँ, तो जो हमारा DB सेकंड है वो सर्कल को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है? एक C पॉइंट पे और एक B सर पॉइंट पे. एक बार सेकंड आप समझा सकते हैं? श्योर श्योर, जस्ट गिव मी अ मिनट महक. यस अक्षय, यहाँ तक हाँ क्लियर? सर. ओके, ठीक कोई है. भी एक टेंजेंट कंसीडर करना है क्या? यस, टेंजेंट तो एक ही है. डी वाली टेंजेंट है. अच्छा. सीडी टेंजेंट थोड़ा ना है, वो तो सेकंड है. सेकंड हाँ क्या हाँ. होता है महक? कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से लेट से मैं सर्कल को काट दूं तो ये कट करके निकल रही है ना, तो दिस इज अ सेकंड. मतलब ऑल्दो ये कॉर्ड भी है लेकिन क्योंकि इसको मैंने एक्सटेंड किया इसलिए ये सेकंड है. ओके सर, ओके. ठीक. ठीक है महक. ओके. सो टेंजेंट एक ही जगह टच करके निकल जाती है, सेकंड दो जगह टच करती है, एज सिंपल एज दैट. तो हमने यहां पर लगाया डीसी मल्टीप्लाइड बाय डीबी. डीसी मल्टीप्लाइड बाय डीबी इज द टेंजेंट का स्क्वायर विच इज डी स्क्वायर. सो अक्षय, इज इट क्लियर नाउ? यस सर. तो सर ठीक है. और सर कुछ? सेकंड इसको कॉर्ड पाइथागोरस थ्योरम से नहीं कर सकते? जस्ट गिव मी अ सेकंड रुचि. यस अक्षय. सर टेंजेंट सॉरी कॉर्ड और फिर सेकंड में कुछ फर्क नहीं होता क्या? दोनों सेम होते हैं? ऐसा नहीं है. मतलब कॉर्ड को जनरली क्या बोलते हैं? जो सर्कल के ही दो पॉइंट से बना है. ओह. सर्कल के दो ओके. पॉइंट जोड़ दिए और सेकंड मतलब कोई एक लाइन मार दी थी और जो दो जगह टच कर दी तो वही सेकंड है. दैट्स इट. अच्छा, ठीक है सर. ओके. रुचि बोल रही है कि इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं क्या? रुचि, चलो मैं ये पाइथागोरस ले भी लूं, लेकिन तुमसे ये किसने बोला कि ये सेंटर से जाने वाला है? ओ से. अगर ये ऐसी डायग्राम बनी तो आप बी कैसे निकालोगे? रुचि, आपका डाउट क्लियर? यस सर, क्लियर, थैंक यू. ओके. चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन में सारा डेटा दिया हुआ है. यू नीड टू फाइंड एओ कितना होगा. चलो बताओ.
मयूरी, इसमें टेंजेंट सेकंड थ्योरम कैसे लगाओगे बताओ? PA square is equals to AB into AO. AB into AO. AB into AO. AB into AB into AO सेंटर में. सेंटर में नहीं, जहां टच कर रहा है वहां, ओके हाँ, AB into AC. है ना, जहां दो डगर टच किया. सो अपने को ये 20 दिया था, दिस इज गिवन एज 10, सो हमें एसी मिल जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 10, एसी आया 40. ठीक है, क्लियर महक, सॉरी मयूरी? यस सर. ठीक है, अब पूरा 40 था तो बीसी कितना हुआ मयूरी? क्वेश्चन टू यू ओनली. 30. 30, क्योंकि ये 30 था और ये डायमीटर था तो दोनों 15-15 हो गया. यस सर. अब पूछा है एओ कितना होगा, तो एओ शुड बी 15 प्लस 10, दैट इज अ 25. यस. क्लियर? यस सर. ओके, अक्षय क्लियर? आपने 15 बोला था, इट शुड बी 25. हाँ सर, वो मैंने ओबी का निकाल लिया था 15, वो तो भूल ठीक है, गया. व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर? ओके, चलो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके चलो, फाइंड सीडी, एक और सिंपल सा क्वेश्चन. मयूरी, इसमें बताओ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होंगी? AX upon BX. AX into BX is equals to DX into CX. Sorry. ax into bx equal to DX into CX. cx into dx. Perfect. Yes. ठीक है, आंसर लेकर आ जाओ. कितना आ रहा है सीडी का? Yes, it has to be 22. So if I assume this as XC दिया हुआ है ना, let's say this is 5K, this is 6K. So 5K into 6K, 5K multiplied by 6K equal to 8 into 15. So 30K square is 120, K square is 4, K will be 2. If K is 2, this will be 12 and this is 10. 10 plus 12 is 22. So answer is 22. बाकी लोग प्लीज रिप्लाई, क्लियर और नॉट? ठीक है, जस्ट एक रैंडम बुलशिट थिंग, कितने लोग WWE देखते हैं? संस्कार तो नहीं देखता, बढ़िया भाई, बहुत अच्छा है. अक्षय भी नहीं देखता, ये भी ठीक है. महक देखती महक WWE देखती है भाई, मैं तो लड़कों से एक्सपेक्ट सर, कर रहा था. बचपन में देखा है सर, ठीक है, पापा के बचपन में साथ. देखा है. अच्छा ठीक है.
ओके सो दिस इज dx, मतलब तुम्हें समझ में आया होगा अगर तुम WWE देखती हो तो dx क्या है। हाँ ठीक सर। है, मुझे मुझे लगता है कि मुझे अकेले को ही पता है। कौस्तुभ, तुम भी नहीं देखते हो WWE? ये नहीं पता सर। आप ज्यादा ही डीप कर रहे हो सर। अच्छा, मैं कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया। ठीक है, छोड़ो। लेट इट बी। मैं कहा ज्योमेट्री बहुत हो रहा होगा तो थोड़ा सा तुम्हें बाहर लेकर आता हूँ, लेकिन शायद मेरा जोक मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। कोई बात नहीं, होता है। हाँ जी, चलो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आप कितनी कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हो ए फिगर में? चलो जल्दी से रिप्लाई करो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आप कितनी कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हो? जीरो। इट इज नन। आप कोई कॉमन टेंजेंट बना ही नहीं सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनली टचिंग सर्कल, जो अंदर से टच कर रहे हैं। यहां पर बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती है? ठीक है, सो देर इज ओनली वन कॉमन टेंजेंट। खुदा के वास्ते प्लीज ऐसा डायग्राम कुछ मत बना लेना कि देखो सर 3 बना दी। भगवान का वास्ता है तुम्हें। देर इज ओनली वन टचिंग टेंजेंट। पर सर वैसे भी तो बन ही सकती है ना। बहक, तुम क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही हो कि अगर ये यहाँ पे टच किया तो ये इधर से टच करेगा? कॉमन थोड़ा ना हुआ दोनों सर्कल को। ये जो हाँ सर्कल सर। को जब जूम करके देखोगे तो सिर्फ वो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा होगा। ठीक ओके है, सर। ओके। ये देखो दिख रहा है, ये एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है सिर्फ। और जूम करूंगा तो एक पर ही दिखेगा। तो देर विल बी ओनली वन कॉमन टेंजेंट। ठीक है, सो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो नॉन इंजीनियर्स करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि भाई एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग सर्कल पे कितनी बनेंगी बताओ? फिगर नंबर सी, दिस इज कॉल्ड एन इंटरनेट इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो यहां पर बनेंगी 2, लाइक दिस। देन फिगर नंबर सी सेज दिस इज एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। यहाँ पे कितनी कॉमन टेंजेंट्स बननी चाहिए? सो इट वुड बी 3, 1 2, और बीच में से गई तीसरी। एंड देन फोर्थ, नॉन टचिंग सर्कल्स में कितनी कॉमन टेंजेंट बनेंगी? यस, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। हाँ जी, संस्कार जी अनम्यूट कर दो प्लीज। यस सर। इनफाइनाइट कैसे बताना? सर मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं सोचा, बट ऐसा लगा कि कहीं से भी बन सकती है। ठीक है, ये 2 तो मैंने बना दी, और तीसरी? सर एक ऐसी क्रॉस में भी बन सकती है डायगोनली। चल ठीक है, 4 बना दी। हाँ, फिर 1 2 3 4 हो गई। आगे? नहीं, आगे नहीं बनी। तो इनफाइनाइट कहाँ से बन रही थी? मतलब तुम भी ऐसा कुछ तो बना रहे थे क्या? ऐसा चला जाएगा या फिर इधर से टच करके चला जाएगा? ठीक है, सो इट शुड बी 4। यस, ओके। क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is angles के questions. So inscribed angle in a arc is equal and it is half the central angle. क्या कहा मैंने कि अगर ये आर्क इंस्क्राइब्ड है, ये वाला, सो इफ दिस इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा। अब मैं यहाँ पे कितने भी बना लूं, चाहे ये भी बना लूं, दिस विल बी आल्सो थीटा। अगर मैं कहीं और से बनाना चाहूँ यहां से, सो दिस इज आल्सो थीटा। inscribed angle is equal and it is half the central angle. So uh, let's say if I give this कि भाई ये 40 डिग्री का है, दिस इज ए डिग्री, एंड सेंट्रल में दिस इज बी। सो फाइंड ए कितना होना चाहिए और बी कितना होना चाहिए? ए is 40, B will be
double of it, which is 80 degree. 40 and 80. Clear? Ruchi, Mayuri, Mehak. Okay. Opposite angles in a cyclic quadrature are supplementary. तो साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या है, यानी जिसके चारों पॉइंट सर्कल पर है. So if this is theta, this has to be 180 minus theta. Opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary. And the most important property is diameter subtends 90 degree on the circumference. ये है आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. डायमीटर, जब भी डायमीटर दिखा तो उसने कोई भी एंगल बनाया होगा सर्कल पे, वो हमेशा रहेगा 90 डिग्री का. diameter subtends a 90 degree angle on the circumference. ठीक है. So if you want to take the screenshot, please take the screenshot. Okay, so let's move to the next slide. देखते हैं आपको कितना समझ में आया. फिगर आपके सामने है. मेंटली ट्राई एडीबी कितना होगा, एंगल एडीबी. मयूरी कितना, धनवंतरी, मयूरी आया. हाँ सर आई. आया या 65. नहीं आया? 65 करेक्ट है. कैसे? ए और बी एंगल सेम ही रहेंगे 25 तो 6 बिल्कुल करेक्ट है. सो दिस इज 25, दिस इज 25, ये हो गया 50, तो ये 140 हो गया 130 उसका और उसका हाफ. आधा. ठीक है, गुड. चलो बाकी लोग क्लियर. एडीबी in the figure, PQ and QR are chord of circle with center O. If angle OPQ is 50, ORQ is 50, find POR. महक, तुम्हारा आंसर करेक्ट लग रहा है मुझे. उसके पीछे का जस्टिफिकेशन दे सकते हो? यस सर, क्योंकि बोलो. जो 50 है और जो पीओ और ओ क्यू है वो इक्वल है, तो ठीक है. आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुआ तो 50 इक्वल 50-50 और सेम 100. दूसरे वाले ट्रायंगल में 60-60 हो So जाएगा 80, 60, 60. So this is एंड also 60. 60. यस So पूरा एंगल इज 140 डिग्री. सभी लोग रिप्लाई कर दो क्लियर और नॉट, जिनके आंसर्स नहीं आए. सर इसको हम, अच्छा नहीं, हाँ गॉट इट. मुझे लगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बट ओ इज नॉट ऑन द सर्कमफरेंस. गॉट इट. हाँ ठीक है. ओके. So in the figure, PQR and QRS are inscribed in the same circle और एंगल भी दे दिए है 35 and 50. Find angle QTR.
अक्षय, इतने जल्दी इतना गलत आंसर तुमने कैसे दिया? सर मैंने वो इंस्क्राइब्ड एंगल्स वाला लगाया तो मेरे को लगा वो लगेगा। हाँ, तो अगर बाहर का एंगल 35 है तो सेंटर का उसका डबल होना चाहिए ना। सेंटर तुमसे किसने कहा कि टी अच्छा, सेंटर है? तो फिर गलत है सर। रुचि, तुमने कैसे कहा 100 है? सर मैंने टी को सेंटर कंसिडर कर लिया और फिर वो उससे आ गया। ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब मत किया करो तुम ऐसे, रिस्क मत लिया करो। डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके सर। चलो जी, गुड। संस्कार, लॉजिक दे सकते हो? 85 करेक्ट है कैसे? सर एंगल QPR इक्वल टू एंगल QSR होगा। QPR इक्वल टू QSR। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ने ये वाला आर्क इंस्क्राइब किया था, तो ये 35 है, तो ये भी 35 हो गया। सो एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, और ये हो गया 85, तो दिस विल बी 95, है ना? यस सर। और 95 का सप्लीमेंट्री इज 85 डिग्री। सो एंगल QTR शुड बी 85 डिग्री। सब लोग रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, क्लियर और नॉट। धनवंतरी, महक, प्रणाली, वाणी, क्लियर? अनंता, ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि किसको आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है? मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, या इजी लग रहा है? जल्दी से रिप्लाई कर दो। डिफिकल्ट, मॉडरेट या इजी आज का सेशन? मॉडरेट वानी को, बाकी लोगों को ई लग रहा है। ठीक है, चलो, अगर वानी को मॉडरेट लग रहा है तो वानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे सॉल्व कराएंगे। वानी, अनम्यूट करो प्लीज। यस सर। ये फिगर हमने दी है, इसमें आपको एंगल BED निकालना है और BDE भी निकालना है। ठीक है? ओके। सो आप स्टार्ट कर सकते हो कि क्या क्या पॉइंट आप लेके सॉल्व करोगे। सर DOB 40 हो सकता है। वेरी गुड। DOB 40 डिग्री हो जाएगा। ओके, आगे? DO और BO सिमिलर होंगे तो सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, हाँ इक्वल। तो तो ODB और OBD भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने कितने होने चाहिए? 70-70। वेरी गुड। सो ये 40 था, ये 40 था, तो ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। आगे? अगर वो 70 होंगे सर 180 सप्लीमेंट्री हो जाएगा का 70 का। तो कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? DBE हाँ, DBE आपका हो जाएगा 10। 110 डिग्री का। ठीक है, आगे? और क्या हो सकता है? डन? हार यस गए? सर। यस सर। चल, मैं तेको, तू मेरे को सिर्फ 100 रुपए दे, मैं तेको आगे का बताता। सिर्फ 100 रुपए धीरे सर। दिए नहीं भी तो ट्रांसफर वगैरह करो, तो मैं तेको हिंट दूंगा। नहीं तो फिर मैं किसी और के पास चला जाऊंगा।
सर क्या हिंट देखने दे मेरे को। नहीं, मेरे को देखने दे, और किसी ने मॉडरेट रिप्लाई किया क्या? वाणी अकेली थी मॉडरेट वाली। ठीक है जी। चल तू रुचि को 50 रुपए दे देना, रुचि 50 रुपए में बताने को तैयार है आगे का। ओके। ठीक है रुचि, बता आगे क्या करेंगे। हाँ तो सर अपन इसको वो क्वाड्रिलैटरल वाला जो आपने बोला था वो थ्योरम यूज करके हाँ, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल? कि पैरेललोग्राम, अपोजिट रोम्बस? एंगल्स, नहीं नहीं वो बस जो भी डाय अगर सर्कल के कोई भी इस पे अगर चारों भी हाँ, पॉइंट्स हो उसको गए। उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके सर ठीक है। हाँ, तो फिर साइक्लिक उसमें क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर हाँ तो फिर वो जो ए बी डी एंगल और ए सी डी एंगल अपोजिट आ जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। और हाँ सप्लीमेंट्री तो में एडिशन होता है 110 का। सॉरी, ये 70 है तो वो तो 180 हुआ, 180। ये हुआ 110। सो हाँ 50 और 51 अगर मैं ट्रायंगल ए सी ई देखूं तो 50 और 110 हो गया 160, तो बचा 20। 20 हाँ और फिर ये से 20 और 110 और 20 हो 70। गए 130, तो बचा ये 50, है ना? ओके। यस सो वाणी क्लियर? यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया है? क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज रिप्लाई चैट बॉक्स यस और नो। ओके, परफेक्ट। चलो चलते हैं आगे। AB is the diameter of a circle with radius 5. Let P and Q be a 2 points on the circle of that length, which is PB is 6. Length of AP is twice of AQ. So AB 10 सेंटीमीटर का है, P और Q 2 पॉइंट्स है, PB हमारा 6 है, और AP is twice of AQ. QB will be nearest to. चलो solve this. ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। ए बी डायमीटर बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि
एपी का कुछ लेंथ आया क्या, हाँ या ना, और आया तो कितना आया? अक्षय, आप एपी 8 बोल रहे हो, उसके पीछे का रीजन दे सकते हो? यस सर, तो अगर हम एपी को ज्वाइन करते हैं तो फिर डायमीटर जो भी एंगल सस्पेंड जो भी करता है वो 90 होगा। हाँ तो बिल्कुल ये बढ़िया। 90 होगा, तो वो हाइपोटेनस होगा 10, तो 10 स्क्वायर ठीक है, माइनस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर हो जाएगा मतलब। ठीक है, हाँ ओके आगे। सर, अभी तक तो इतना आया। सो एपी इज ट्वाइस ऑफ ए क्यू। अगर एपी 8 है तो ए क्यू 4 हुआ। यस अब हमें बी क्यू निकालना है, बी क्यू कितना होगा अक्षय? सर, बी क्यू हाँ, ये क्यू बी जो भी है। सर 100 माइनस 16। which is root of 84 and root of 84 is nearest to। सर 9 के करीब आना चाहिए कुछ। 9.3 भी है, 9.1 भी है, स्क्वायर रूट ले लो, यू विल गेट ए एज द आंसर। महक, क्या पार्ट नहीं समझा बताओ? नहीं सर, वो मैं कुछ और लिख रही थी, कुछ और लिखा गया। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? बी क्यू आपका रूट 84 आएगा। यस सर। So root 84 is 9.1 approximately. What about others? Ruchi, Dhanvantri, is this clear? ओके, चलो चलते हैं हम फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। On a triangle ABC, a circle with diameter BC is drawn, intersecting AB and AC at points P and Q respectively. इसका थोड़ा सा डायग्राम डिफिकल्ट है, so let me draw the diagram for you. This is the diagram. So if the lengths of AB, AC and CP are 30, 25 and ठीक है, so AB is given as 30, AC is given as 25 and CP is given as 20. You need to find BQ is how much. कितनी आइडिया? नो आइडिया? सर रेडियस आ गया बीसी ठीक है, 25। और BQ कैसे निकाला, BC कैसे निकाला आपने? सर ये राइट एंगल हो जाएगा बीपीसी, और अगर बीपीसी हाँ राइट ठीक है, एंगल है तो एपीसी भी। APC भी राइट एंगल है, हाँ, ठीक है। तो एपी आ जाएगा सर। सो 20 है, ये 25 है, एपी ये 15 15, है, फिर ये तो बचा ये हुआ 15 है, तो 15, ये भी 15 है, तो ये तो फिर 15 ये है, ये बीसी 20 है, 25। 25 है, ठीक है, ओके आगे। सर फिर बीक्यू ज्वाइन कर दो आप। ठीक है, मैंने कर दिया, तुम ऑर्डर दे रही हो तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट। सर वही आके मतलब मैं सोच रही थी आगे कैसे करना है। अटक गई, ठीक है, ओके। लेट मी सॉल्व दिस। और किसी के पास, अश्विनी का तो आ गया, और कोई मेथड किसी के पास है तो बता दो।
नहीं है, ठीक सर है। ये सो आइसोसेलेस लेट्स ट्रायंगल है ना, उसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या? 25 नहीं 25 उतना आ कुछ गया था। अच्छा ओके। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अ, ये सभी 90 डिग्री है। यस। So if I want to find area of ABC, it will be half of, if this is base, height will be 20, which is also equal to half of, if this is base 25, height will be BQ. So let's cancel out this half and half. BQ will be 30 into 20 over 25. So ये 4, ये 5, ये 1, ये 6, 6 4s are 24. So your BQ is 24. डायमीटर सब्सटेंस 90 डिग्री, दोनों जगह 90 डिग्री लगा लिया, और हाफ बेस इनटू हाइट लगा लिया, क्योंकि मेरे पास बेस तो था ही और हाइट निकालनी थी। So question number 14, clear or repeat? Please let me know. सर अपने को ये कैसे पता चला कि दोनों का एरिया इक्वल है? क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल में एबीसी में, तो हाँ बेसिकली मैं एबीसी का एरिया निकाल रहा हूँ। हाफ बेस इज 30, हाइट विल बी 20, यस सर। which is also equal to half base is AC, then height will be BQ. So half of 25 into BQ. एक ही ट्रायंगल है तो एरिया इक्वल है। ओके सर। हाँ जी, बोलिए जी, कोई डाउट? मयूरी, अनिमेश, क्लियर? ठीक है। So area of a circle is pi r square. Area of a sector is theta upon 360 into pi r square. Circumference होता है 2 pi r, और एरिया ऑफ आर के सॉरी लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 into 2 pi r. Area of a sector is theta upon 360 into pi r square. So these are the 4 simple formulas. अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते हैं you can take this screenshot. ठीक है। सो अभी अपन आई गेस और 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो लेट्स जंप इनटू इट। इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, एन आर्क AB मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट O। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक एक लाइन पढ़ता हूँ, आप एक एक लाइन का मतलब अगर आप डायग्राम बना पा रहे हो तो सी रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, ताकि मैं उतने डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। In a circle with center O with radius 1 centimeter, arc AB makes an angle of 60 degree at O. First part clear? कोई तो आर्क है वो 60 डिग्री बना रहा है, कहां पर बनाएगा? सेंटर पे। So this is the diagram. Let R be a region bounded by radii OA, OB and arc AB. So ये जितना भी दिख रहा है, this is term as R. This is the region. If C and D are 2 points on OB and AO and OB respectively, such that OC is equal to OD, and the area of OCD, area of triangle OCD is half of R. Then find OC. Okay, so let's do step by step. रीजन R का एरिया कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। रीजन R का एरिया होगा कितना? दिस इज अ सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा गिवन था 60 अपॉन 360 इंटू पाई, और रेडियस था 1, सो 1 का स्क्वायर, सो दिस इज 1/6। तो रीजन आर इज 1/6 इंटू पाई। प्लीज रिप्लाई, रीजन आर 1/6 पाई, क्लियर? ठीक है। सो आर का एरिया आ गया है π/6. So OCD is half of R, that is π/6. ओके, OCD कैसा ट्रायंगल दिख रहा है बताओ? OCD कैसा ट्रायंगल है?
इक्विलेटरल है। और महक, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला भी बता दो। महक, ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हारा ज्योमेट्री पढ़ के फायदा नहीं होगा। रुचि, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ। रुचि, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद नहीं आ रहा है, बाप रे। बट समथिंग अपॉन 4 ऐसा है ना। So it should be √3 divided by 4 into side square. Side तो OC थी, which is OC का square equal to half of pi by 6. So OC square क्या होना चाहिए देखते हैं। ये 1, so ये 2, ये 1, तो ये 3. So OC square is pi upon 3√3 और OC will be pi upon 3√3 का square root, which is option A. So question number 15, answer should be option A. Do reply clear or not. Although diagram is the difficult part, baki if you know the formula and property, you can get to the answer. धन्वंतरी, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन में? सर स्टार्टिंग का समझ नहीं आया। ठीक है, स्टार्टिंग आपने का समझ नहीं स्टार्टिंग आया। में जो एक्सप्लेन किया ना वो। ओके, दिस इज द रीजन आर, ठीक है, और रीजन आर का एरिया निकालना है, विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस सर। थीटा अपने को 60 दिया था, सो 360 अपॉन 360 इंटू पाई, और रेडियस 1 थी, तो मैंने रेडियस की वैल्यू 1 रख दी। सो दिस इज पाई बाय 6, ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन में ये भी बोला था, ये जो ट्रायंगल है वो आर का आधा एरिया है, सो ट्रायंगल का एरिया इज हाफ ऑफ आर। यस सर। ठीक है, और ट्रायंगल बोला था इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, विच इज हाफ ऑफ आर। नहीं, आर क्या था अपना, π/6। अब इसको ही सॉल्व करके ओसी निकालना है धन्वंतरी, दैट्स इट। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना इस क्वेश्चन के लिए, तो इट विल बी क्लियर टू यू। यस सर। चलो, अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चंस पे। टू सर्कल each of radius 4 centimeter touch each other externally. Each of these two circle is a touch externally by a third circle. If these three circles have a common tangent, radius of the circle in centimeter is. So this is the last question. आप लोग डायग्राम बनाकर भेज दो प्लीज एक बार व्हाट्सएप पे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, डायग्राम आ गई तो आंसर आ जाएगा। डायग्राम के बाद में क्वेश्चन में कुछ रहेगा ही नहीं। चलो डायग्राम बनाओ और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। लास्ट 5 मिनट्स है, तो अगेन नो चीटिंग, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम। क्वेश्चन पे डायग्राम भेजी और वापस आ गए। अब तक किसने भी डायग्राम नहीं भेजी। टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, मतलब भाई बाहर से टच कर रही होंगी। ये दोनों को एक्सटर्नली एक और सर्कल टच कर रहा है, तो 3 सर्कल एक्सटर्नली टच हो गए और इनमें एक कॉमन टेंजेंट है, दैट्स इट। कॉमन टेंजेंट में समझ रहा है सर। कॉमन टेंजेंट मतलब तीनों को टच करेंगे। सर वो थर्ड सर्कल, मतलब जो 2 सर्कल है उसमें से एक सर्कल को हाँ। थर्ड सर्कल के अंदर बना सकते हैं क्या?
अंदर बनाओगे तो वो तो इंटरनली टचिंग हो गया। क्वेश्चन में बोला है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, नहीं बना सकते हो अक्षय। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो बढ़िया, अश्विन का आंसर आ भी जाएगा। ठीक है, सो मुझे काफी इंटरेस्टिंग डायग्राम्स मिली है, तो गुड अश्विनी, आपका करेक्ट है। सर बिना गलत है क्या? तुम्हारा और संस्कार का मतलब जो डायग्राम है वो बहुत मासूम डायग्राम है। मासूम मतलब एट सेट कि भाई तुमने दो सर्कल बना लिए टचिंग वाले, ठीक है, इसको एक टेंजेंट भी बना ली, ऊपर से बना लो या नीचे से, यहाँ तक तो ठीक था। फिर तुम लोगों ने क्या किया कि जबरदस्ती को इसको ऐसा कुछ सर्कल बनाया, ऑल्दो ये एक मटके के जैसा दिख रहा है, लेकिन तुमने इसको सर्कल बोल दिया। महक, समझ में आई गलती? नहीं सर। है ना, मतलब ये क्या है कि तुमने दो सर्कल बना लिए, और क्योंकि वैसे तो ये सर्कल ऐसे टच होना चाहिए था, लेकिन तुमने टेंजेंट बनाने के लिए उसको ऐसा कुछ बनाया मटके के जैसा, वो मिकी माउस का चेहरा होता है ना, ऐसा, और फिर यहां से डाली है टेंजेंट। तो ये तो बहुत ही गलत डायग्राम है। ठीक है महक, संस्कार समझ में आया गलती क्या है? यस सर। ये जो सर्कल है वो तो ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन तुमने जबरदस्ती टच करवाया उसको। ठीक है, बाकी लोगों की डायग्राम देखने दो बोला। आज मजा आएंगे, आखिरी क्वेश्चन है, डायग्राम में ही मजा आएंगे आज तो। ओके, केतकी का डायग्राम वैसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन केतकी तुम ये सोचो, क्या जो दूसरा सर्कल है वो तीनों सर्कल्स आपस में टच होने चाहिए, हो रहे हैं क्या? तीनों सर्कल आपस में टच होंगे? नहीं होंगे। सर अक्षय तुम्हारा भी हाँ, मिकी माउस बन गया। अच्छा, दोनों को टच करवाना है, ओके ओके, मुझे लगा सिर्फ यस, टैंजेंट कॉमन चाहिए। सर नहीं एक और सर्कल नहीं, नहीं टच किया तो ओके कूल गॉट इट। तीनों सर्कल एक दूसरे को टच होने चाहिए और उनकी कॉमन टेंजेंट चाहिए। तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करने चाहिए और कॉमन टेंजेंट भी चाहिए उनमें। यस अनिमेश, योर्स इज करेक्ट। ठीक है, चलो, सो लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन। देखो, इसको अगर कॉमन टेंजेंट बनानी चाहिए तो या तो एक कॉमन टेंजेंट ऐसी बनेगी, या फिर एक कॉमन टेंजेंट ऐसी बनेगी। फर्स्ट टेक द रॉन्ग केस, अगर एक कॉमन टेंजेंट में ऐसी बना लेता हूं, तो मुझे एक सर्कल बनाना है। अब मैं सर्कल बनाऊं कहाँ? सर्कल में अगर इधर बनाने जाऊं तो टेंजेंट्स इन दोनों को हो गया, इसको टच नहीं कर रहा। अगर ऐसा कुछ बनाऊं, अगेन लेफ्ट वाले को टच कर रहा, राइट को नहीं कर रहा। यहां बनाने जाऊं तो नहीं हो रहा, इधर बनाने जाऊं तो मैं लेफ्ट से लेके जा ही नहीं सकता हूं। तो कैन आई से दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ टेंजेंट, यहां पर वो टच करेगा ही नहीं। एंड इफ आई मेक द अदर, इट लुक लाइक दिस। तो अगर इसको टच कराना है तो यहाँ पर, और बाहर तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अगर बाहर बनाऊं तो ये सर्कल का कोई भी पार्ट नीचे नहीं आ पाएगा, और अगर नीचे नहीं आ पाया तो दूसरे सर्कल को टच कैसे करेगा? सो द डायग्राम वुड बी लाइक दिस, कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नली। सो प्लीज रिप्लाई, डायग्राम तक ठीक है? डायग्राम तक समझ में आ गया? सर और एक पॉसिबिलिटी है ना कि हाँ, सपोज अगर यस, हाँ अपन वर्टिकल टेंजेंट रख रहे हैं और उसके लेफ्ट साइड में दो हाँ, सर्कल बना रहे हैं जो कि एक्सटर्नली टच ठीक हो है, रहे हैं, और राइट साइड में एक सर्कल। हाँ, अच्छा ओके, तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? सर लेफ्ट साइड में दो सर्कल बना रहे हैं, एक ठीक है, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल। हाँ, एक टेंजेंट भी बन गई, ओके, आगे? सर ये जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर है। लेकिन फिर उसको हम बोलेंगे कि दिस इज इंटरनली टचिंग सर्कल, इसको एक्सटर्नली नहीं बोल सकते। ओके। क्लियर ओके। संस्कार? यस सर। ओके, नाउ दिस इज गिवन एज 4, ठीक है। इफ आई टेक दिस एज r, what is this distance? It will be 4 plus r, and
पूरा 4 है एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस r this will be 4 minus r. So 4 minus r, 4 plus r and 4. क्या ये पार्ट क्लियर सभी को डायग्राम का? 4 plus r, 4 and 4 minus r. वाणी नहीं है, धन्वंतरी, मयूरी, ठीक है. So I have two choices. Either I can apply Pythagoras theorem which says that 4 plus r square equal to 4 square plus 4 minus r square. और अदर चॉइस कि अगर मुझे 4 दिखता है तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक ट्रिपलेट लगाने का सोचूं. ट्रिपलेट होंगी, अगर 4 दिख गया है दिस हैज टू बी 5. सो क्योंकि 4 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है तो r ये 1 है जो कि यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है. सो आंसर शुड बी 1. आई कैन अप्लाई पाइथागोरस एज वेल और या फिर मैं ट्रिपलेट का भी सोच सकता हूँ. सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी. प्लीज लेट मी नो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज डी. इज दिस क्लियर और नॉट? सर एक बार वो 4 माइनस आर वाला पार्ट नहीं समझा. श्योर, ओके. ठीक है. सो कैन आई से दिस इज 4 and r? यहाँ तक क्लियर है संस्कार? यस सर. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस? अगर ये ब्लू लाइन देखा अभी, ये वाली ब्लू लाइन जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टल से स्लाइड करके लाई है. यस सर. सो पहले कितना था? ये पूरा हमारा r था, मतलब 4 था, ठीक है. एंड इस जो छोटे सर्कल का है वो रेडियस r था. यस. सो कैन आई से दिस विल बी 4 माइनस r. पूरा 4 है, पूरा जितना भी है वो 4 है और ये वाला r है. सो दिस विल बी 4 माइनस r. यस सर, गॉट इट. Got it? Okay. So just apply Pythagoras theorem over here. ठीक है. So with this I am done. जिस किसी को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है